السلام علیکم ناظرین، پی نیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں آپ کا میزبان بشیر ناز. آئے تفصیلات سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی شماری میں شامل خبروں کی سرخیوں پر. 80 کروڑ لوگوں کو نومبر تک مفت راشن جاری رکھنے کا وزیر اعظم نریندر مودی کا قوم کے نام خطاب میں اعلان. جموں کشمیر کے حوالے سے پھر کسی بڑے فیصلے کی باز گشت، سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم. فورسز کی اضافی تعیناتی ملک کی سلامتی سے جڑا معاملہ، بھارتیہ جنتا پارٹی رویندر رینا کا بیان. جموں کشمیر میں کورونا وائرس کی تعداد میں نمایاں کمی، یومیہ مثبت کیسوں کی تعداد 1000 سے بھی کم. جزوی طور لاک ڈاؤن کے دوران دکانوں کے باہر اور اندر خریداروں کا کافی رش، سڑکوں پر بھی بڑی تعداد میں گاڑیاں چل رہی تھیں. جموں کشمیر کے عوام گوناگون مشکلات سے دوچار، نوجوان نسل مایوسی کا شکار. بارہمولہ کے پارٹی ورکروں سے عمر عبداللہ کا خطاب. ڈی ڈی سی چیئرپرسن کے ساتھ چیف سیکرٹری کی آن لائن بات چیت. 73ویں آئینی ترمیم ایکٹ پر عمل درآمد کی یقین دہانی. ٹورسٹ ٹرانسپورٹ سے وابستہ مالکان 3 دہائیوں سے پریشان، مالی پیکیج کا کیا مطالبہ. میڈیکل کالج سری نگر کے بی ڈی ایس ڈگری یافتہ ڈاکٹروں کا احتجاج، 2008 سے نوکریوں کی تلاش میں. کووڈ-19 ویکسینیشن مہم میں شمولیت کرنے سے انکار، جموں کشمیر کے آنگن واڑی ورکرز کا احتجاج میں اعلان. گورنر سے شکایت کرنے کے باوجود R&B محکمہ ٹس سے مس نہیں ہوا، گرین ایونیو کالونی کے باشندوں کا احتجاج. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی نے پردھان منتری غریب کلیان انا یوجنا کو دیوالی تک جاری رکھنے کا اعلان کیا. مودی نے کل شام 5 بجے قوم کے نام خطاب میں کہا کہ اس اسکیم سے 80 کروڑ لوگوں کو نومبر تک مفت راشن ملے گا. انہوں نے کہا کہ حکومت کے اس انتظام سے غریبوں کو بھوکا نہیں سونا پڑے گا. واضح رہے، حکومت نے کورونا وائرس کے قہر کے مد نظر اس اسکیم کو مئی اور جون مہینے کے لیے منظوری دی تھی. وزیر اعظم نے کہا کہ وبا کے اس وقت میں حکومت غریب کی ہر ضرورت کے ساتھ ساتھی بن کر کھڑی ہے. 21 جون سوموار سے دیش کے ہر راج میں 18 वर्ष سے اوپر کی عمر کے سبھی ناگرکوں کے لیے بھارت سرکار راجیوں کو مفت ویکسین مہیا کرائے گی. ویکسین نرماتاؤں سے کل ویکسین اتپادن کا 75% حصہ بھارت سرکار خود ہی خرید کر راجیہ سرکاروں کو مفت دے گی. دیش میں بن رہی ویکسین میں سے 25% پرائیویٹ سیکٹر کے اسپتال سیدھے لے پائیں، یہ ویوستھا جاری رہے گی. پرائیویٹ اسپتال ویکسین کی نردھارت قیمت کے اپرانت ایک ڈوز پر ادھکتم 150 روپے ہی سروس چارج لے سکیں گے. آج سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کو اب دیپاولی تک آگے بڑھایا جائے گا. مہاماری کے اس سمے میں سرکار غریب کی ہر ضرورت کے ساتھ اس کا ساتھی بن کر کھڑی ہے. یعنی نومبر تک 80 کروڑ سے ادھک دیش واسیوں کو ہر مہینے طے ماترا میں مفت اناج اپلبدھ ہوگا. پوری وادی میں افواہوں کا بازار گرم ہے کہ مرکزی سرکار جموں کشمیر کے حوالے سے پھر کوئی غیر معمولی قدم اٹھانے والی ہے. ان افواہوں سے متعلق سوشل میڈیا پر تبصروں اور تذکروں کا خاص چرچا ہے اور لوگ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. اس بیچ CRPF کی جموں اور شمالی کشمیر کے بعض حصوں میں پچھلے 2 روز سے 200 اضافی
कंपनियां तैनात की गई हैं, जिससे खिते में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कौम से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर में जारी इन अफवाहों, तबसरों और तज़किरों की उस वक्त हवा निकाल दी जब उन्होंने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं की, क्योंकि कुछ लोगों ने वज़ीर आज़म के खिताब को भी जम्मू कश्मीर के लिए किसी गैर मामूली इकदाम से मंसूब किया था। वहीं आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने CRPF की 200 इजाफी कंपनियों की तैनाती एक मामूल की कार्रवाई बताते हुए कहा कि ये कंपनियां इलेक्शन ड्यूटी पर भेजी गई थी, जो अब वापस लौट आई हैं और अपने अपने मकामात पर तैनात की गई। वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने कहा कि यूनियन टेरिटरी में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती मुल्क की सलामती से जुड़ा मामला है, जिस पर कोई भी बयान देना ठीक नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अफवाहों का बाजार गर्म होने के बारे में कहा कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। पेश है जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया में मैसेज हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जम्मू को अलग स्टेट फूड मिल रहा है, कश्मीर को अलग से उसको यूटी बनाया जा रहा है, उस पर कुछ उसको लेकर क्या कहेंगे आप? चलिए, आपने खुद ही कहा कि कुछ बातें सोशल मीडिया के अंदर चल रही हैं, वो कुछ सोशल मीडिया की बातें हैं, वो सोशल मीडिया में इनमें ऐसा कुछ देखिए, इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। मुझे लगता है कि ये कुछ मित्रों ने कुछ सोशल मीडिया के अंदर अपडेट किया होगा, तो वहीं से ये चीज़ ज़्यादा अधिक वायरल हो गई है। तो निपटना हमारी प्रायोरिटी है। ये जो सारी चर्चाएं शुरू हुई हैं, ये अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर और जम्मू कश्मीर के परिदृश्य को लेकर वो किसी से भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बैठक कर सकते हैं। अगर उन्होंने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बुलाया है और यहाँ के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी गए हैं, तो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के हालात को लेकर। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मस्बत मामलात में एक मरतबा फिर नुमाया कमी दर्ज की गई है और यूनियन टेरिटरी में यौमिया मस्बत केसों की तादाद 1000 से नीचे आ गिरी है। पिछले 24 घंटों के दौरान यूनियन टेरिटरी में मजमूई तौर 977 नए मुस्बत मामलात सामने आए हैं, जबकि इस दौरान इस बीमारी में मुब्तला 16 मरीजों की मौत भी वाक़ा हुई है, जिनमें से 9 का ताल्लुक सूबे कश्मीर और 7 का ताल्लुक सूबे जम्मू से है। वहीं सरकार की तरफ से जारी कोरोना लॉकडाउन में आयामी कार के हवाले से हफ्ते में 2 दिन जुज़वी तौर दुकानें खोलने के सिलसिले में कल सोमवार को श्रीनगर और इसके गिरदनवा के इलाकों में जुज़वी तौर दुकानें खुली रही, जिस दौरान अक्सर जगहों पर दुकानों के बाहर और अंदर खरीदारों का काफ़ी रश देखा गया और साथ ही सड़कों पर भी बड़ी तादाद में गाड़ियां चल रही थी। अगरचे अवाम और ताजर बरादरी सरकार की तरफ से आयद SOPs पर अमल पैरा थे, तहम अक्सर जगहों पर अवाम समाजी दूरी का लिहाज किए बगैर खरीदारी में मस्त दिखाई दे रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में नौजवान नस्ल को दरपेश गुनागू मुश्किलात पर तशवीश का इजहार करते हुए बढ़ती अमल पर सरकार की जानिब से मुसलसल ब्रेक लगाए जाने को उन नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ रास्त खिलवाड़ करार दिया है, जिसके लिए सभी सतहों पर तदारुक करने की ज़रूरत उजागर की गई है। इन बातों का इजहार पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुबह कम्प्लेक्स में बारामूला के पार्टी वर्करों के मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने किया। इजलास में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल, कोरोना वायरस से पैदा शुदा हालात और इसके मनफी असरात के अलावा इक़्तिसादी बदहाली, तंजीमी उमूरों और पार्टी सरगर्मियों के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कल जम्मू कश्मीर के जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन के साथ एक मैराथन मीटिंग की सदारत की, ताकि ज़मीनी हकाइक, मकामी ज़रूरियात और दरपेश मसाइल को मद्देनज़र रखा जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने जिला तरक्याती काउंसिलों पर जोर दिया कि वह अवामी सतह तक वसी और शिरकत के ज़रिए मनसूबा साजी के दौरान हिस्सा लेने वाली जमहूरियत की हौसला अफजाई करे। उन्होंने जिला तरक्याती काउंसिलों को PRI को तरक्याती तक़वियत देने और 73वीं आईनी तरमीम एक्ट के मौसर निफाज के लिए भरपूर ताउन और मावनत की यकीन दहानी कराई।
वहीं टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता मालिकान ने सरकार से माली पैकेज का मुतालबा करते हुए कहा कि पिछले 3 दहाइयों से जम्मू कश्मीर में नामसैद हालात और खासकर पिछले 3 सालों से लॉकडाउन और कोविड की वजह से इस तिजारत को काफ़ी दचका लगा है, बल्कि टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता ड्राइवर और मालिकान फाका कशी के शिकार हुए हैं। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि हमारी तरफ मरकजी और रियासती सरकारों ने कभी कोई तवज्जो नहीं दी, जो एक अलमिया है। इधर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से 2008 में बीडीएस की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टरों ने एहतजाज किया और सरकार से शिकायत की है कि क्या वजह है कि 2008 में बीडीएस की डिग्री हासिल करने के बावजूद अब तक नौकरियां फराहम नहीं की गई। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भर्ती अमल के लिए कोई ठोस पॉलिसी मुरतब करने का मुतालबा किया है। हमारी प्रोटेस्ट का ये पर्पस है कि सिंस 2008 हमारे यहाँ जो भी बच्चे बीडीएस क्वालिफाई कर चुके हैं उनको जॉब्स नहीं निकल रही है। क्या रीज़न है? आखिर अगर हम भी तो उतने ही क्वालिफाइड होते हैं जितने कि एमबीबीएस वाले क्वालिफाइड होते हैं। 1-2 मार्क्स से रह जाता है। तो अगर आपको जॉब्स नहीं देनी है, आपको हमारे लिए आपके पास ये इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर बंद कर दीजिए हमारी डिग्री। इफ़ यू डोंट हैव फाइनेंस तो स्टॉप द डिग्री। 5 साल बाद हम थोड़ी कैरियर चेंज करेंगे आप अपना। 5 साल बाद तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ना, 5 साल की डिग्री खत्म होने के बाद। ये जो आपकी ग्रीवेंस है, इसके लिए आप जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास गए हैं, तो अगर गए तो क्या रिस्पॉन्स मिला आपको वहाँ से? सर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया है, पर अब हम ये सोच रहे हैं कि अब हम इस स्ट्राइक को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक इनकी तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स नहीं आ जाता है। या तो ये करें, गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? हम उनसे यही अपील करें कि अगर हम इतने सारे 2008 से बैठे हुए हैं तो आप क्यों नहीं कुछ हल निकाल रहे हैं इस चीज़ का। इतनी ज़्यादा ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स है। मेरी खुद की मासी स्टेज 3 ओरल कैंसर से लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई। शी डिडंट नो अप टू द टाइम व्हेन शी वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर। इधर जम्मू कश्मीर के आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम में शमूलियत करने से इनकार किया है। उन्होंने प्रेस कॉलोनी में अपने एहतजाज में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुखातिब होकर कहा है कि हम तब तक वैक्सीनेशन मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक न हमें 2019 से वाजिबुल अदा मुशायरे वागुजार किए जाएं। ज़बरदस्ती कोविड ड्यूटी के लिए निकाला जा रहा है, जबकि कोविड ड्यूटी बहुत कठिन है। इससे पहले हमने 1 साल पूरा कोविड ड्यूटी दी है। घर घर जाके हमने पूछा है लोगों से। इस वक्त हमें ये कह रहे हैं कि उनको आप वैक्सीन सीखो सिर्फ 2 दिन में करने के लिए। अगर किसी खुदा ना खास किसी को कुछ हो गया तो वो फिर हमारे ज़िम्मा होगा। हम चाहते हैं कि हम कोविड ड्यूटी ना दे और हमें ये ट्रेनिंग करने के लिए मजबूर न करे। और इसका पैसा जो हमने इससे पहले 2020 का हमने ट्रेनिंग जो सर्वे की है उसका ड्यूटी दिया है, तो हम चाहते हैं उसका पैसा पहले वागुजार करे और हमारी तनख्वाह जो 2019 से पेंडिंग है वो जल्द अज जल्द वागुजार करे। क्योंकि कोविड की वजह से सब लोग घर में बैठे हैं। पता नहीं आंगनबाड़ी वर्करों के साथ इनको कौन सा वो ये सौतेली माँ का सुलूक कर रहे हैं कि इनको घरों से निकाला जा रहा है कि आप ये ड्यूटी दे दो। ये पिछले महीने 2 लड़कियाँ मर गई है, सिर्फ कोविड ड्यूटी दे वो बेचारी देने के लिए गई है। उनको वहाँ पे कोविड लग गया है, वो मर गई है। जब उनको किसी ने पूछा नहीं तो हज़ारों लड़कियों को कौन पूछेगा। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हम ना ये ड्यूटी देंगे ना ट्रेनिंग करेंगे। तमाम लड़कियों से मैं अपील करती हूँ आपकी वसादत से कि ये कोविड ड्यूटी के लिए मना कर दें। बागी महताब ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी के बाशिंदों ने सरकार से सड़क की खस्ता हालत और अवामी मुश्किलात की शिकायत करते हुए कहा कि पिछले साल लेफ्टिनेंट गवर्नर अवामी शिकायत सेल में सड़क की मरम्मत और मैग्डमाइजेशन की दरखास्त करने के बावजूद मुतल्लिका महकमे ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से अपील करते हुए सड़क की खस्ता हालत और अवामी मुश्किलात को दूर करने का मुतालबा किया है। बेसिकली हमारी जो डिमांड है, हमने पिछले साल अपने जो ऑनरेबल गवर्नर साहब है उनके ग्रीवेंस जो सेल है हमने उस पर एक ग्रीवेंस रजिस्टर की थी। जो हमारा जो रोड है इट्स अराउंड 1.5 किलोमीटर, इसमें मैग्डमाइजेशन के लिए। फिर उन्होंने ऑनरेबल गवर्नर साहब ने उस ग्रीवेंस को कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया था, जो हमारा सब आर.एन.बी. चार्डरा को फॉरवर्ड किया था विद कमेंट्स की इनकी जो ग्रीवेंस है इसको रिड्रेसर किया जाए।
फिर अकॉर्डिंगली उन्होंने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्होंने बोला कि इस वक्त जो है टेम्परेचर डाउन हुआ है तो हम इस वक्त मैग्नेटाइजेशन नहीं करेंगे, तो अगले साल आपकी जो डिमांड है वो फुलफिल की जाए। तो अनफॉर्चुनेटली जब इस साल हमने फिर उनके साथ फिर से टाइप स्टार्ट किया बिफोर 2 months बैक, तो वो कह रहे हैं कि हमने ये मास्टर प्लान में नहीं रखा है। तो ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि अगर एक डिपार्टमेंट एक ये मास्टर प्लान बनाता है तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डिपार्टमेंट को है कि या लोकल जो उनके पास ग्रीवेंस लेके जाते हैं उनके ऊपर होता है। तो फिर हमने फिर से जो हमारी जो ग्रीवेंस आईडी है, हमने गवर्नर साहब की जो ग्रीवेंस आईडी हमने उसको फिर से हमने अप्रोच किया, तो वहाँ से हमें अभी जो हमारा ये सब डिस्ट्रिक्ट ये R&B जो चाडोरा है वो कह रहे हैं कि हमने इसको अपडेट नहीं किया है, तो हमारे पास फंड्स नहीं है। वो हमें एक डोर से लेकर दूसरे दरवाजे तक कहने को कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं SC के पास SC ऑफिस के जाओ, कभी कहते हैं सेक्रेटरीट जाओ, कभी कहते हैं गवर्नर साहब के जाओ। हम आपके माध्यम से जो हमारी ये जेन्युइन डिमांड है ये हम गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुँचाना चाहते हैं कि नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्ताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।